Jai Hind student. Today we will start a new chapter, that is microorganism and viruses, friends and foe. So first, before starting the chapter, first let's have a look on the terminologies, the different terms that we'll be using, okay, throughout the chapter. So let's have a look on the different terminologies. Now the first term is, that is microbes. Okay, what are microbes? So microbes are the small living organism. Microbes are the small living organism which only can be seen through a microscope. That's why they are known as microbes. Okay, they are very small, very small. So in size we can't see from our naked eyes. Then cyst. Cyst is the of outer hard covering in the on the body of microorganism, and this outer hard covering, it protects the microorganism in unfavorable condition. Okay, whenever the conditions are not favorable, the microorganism are protected inside this cyst, inside this hard covering. Then vaccine, they are the small dose of weakened or killed disease causing microbe to immunize the body against a particular disease. Okay, so the vaccines, as you all are familiar with the term vaccine, so they are nothing, they are the small dose of weakened or killed microbes. Means whatever vaccine we take, that vaccine contains the weakened microbes or weakened or very or killed disease causing that microbe only, the of which vaccine we are taking, जिसकी हम वैक्सीन लेते हैं उसी के ही ये स्मॉल डोज वीकेंड, बहुत वीक या फिर किल्ड माइक्रोब्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी में अफेक्ट नहीं होता है. ओके, वो हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं, उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, so that whenever we encounter that microbe, तो हमारी बॉडी उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर ले एंड इट फाइट्स एंड इट किल दैट माइक्रोब्स. इसीलिए हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं. ओके, पैथोजेंस, दे आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं. देन कैरियर्स, they are the insects or animals or any organism which carry the disease causing microorganism. जो disease causing microorganism को carry करते हैं, like अगर हम बात करें तो mosquito is also a carrier. क्यों? क्योंकि ये मलेरिया के माइक्रोब को कैरी करता है. ओके, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है कौन? मॉस्किटो. ओके, देन पाश्चराइजेशन, वो ये एक हीटिंग और कूलिंग ट्रीटमेंट होता है दैट इज गिवन टू द मिल्क टू स्टेरिलाइज इट. ओके, ये वट एवर टर्म्स वी हैव डिस्कस, दैट इज अ शॉर्ट वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. अभी हम इसके बारे में डिटेल में वी विल बी स्टडिंग इन द चैप्टर. ओके, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, it is the conversion of atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compound. How it is done? It is a long cycle, a nitrogen cycle के through होता है, जिसके बारे में भी हम discuss करेंगे. Okay, now let's start with the chapter. So the chapter is that is microorganism and viruses, friends and foe. So we will be studying about microorganism in this chapter, the different types of microorganism and viruses separately. Okay, why viruses are not termed as microorganism, that also we are going to study. Then what are the useful effects of microorganism, harmful effects, so everything we will be studying in this chapter. So first let's discuss about the microorganism. Okay, so microorganism, as I have already told you, they are the very small organism which cannot be seen by our naked eyes. Okay, they can't be seen by our naked eyes, they are only seen through the microscope. Now the word microorganism is also and microbes, they both are same words. Okay, both can be used in place of each other. Now microbes, this micros means small and bios mean life, so very small organism which have life. Okay, so
This is the meaning of the word, literal meaning of the word microbe. Okay, now these microbes we can only observe through the microscope. Okay, so microscope अगर हम बात करें तो there was a scientist named Anton von Leeuwenhoek, or Anton von Leeuwenhoek. So he was the scientist who first observed the microscopic plants and also other organisms including bacteria with the help of microscope. ओके, तो यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और भी जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इवन बैक्टीरिया जो है, उनको इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप से. नाउ जस्ट फ्यू थिंग्स मोर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एंटन वॉन ल्यूवेनहुक. नाउ ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन who has who has seen the observed the bacteria. तो इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. दूसरा, इन्होंने प्रोटोजोआ जो कि आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं और इसमें जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं, इन्होंने इनको भी डिस्कवर किया था प्रोटोजोआ को, और ही हैज़ कॉल्ड दीज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एज एनिमल्क्यूल्स. एनिमल्क्यूल्स उन्होंने नाम दिया था इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का. प्रोटोजोआ बाद में नाम आया. ओके, पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया और ही फाउंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनको इन्होंने कहा एनिमल्क्यूल्स. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स about the contribution of the scientist Anton von Leeuwenhoek. Now we will discuss about the characteristic of microorganism. What are the basic characteristic of microorganism? Okay, so these microorganisms, they can occur as a single cell, that is unicellular, or they can also occur as a collection of cell. या तो वो एक सेल की तरह भी अकर कर सकते हैं, या फिर एक सेल की बात करें तो हम जैसे क्लामाइडोमोनास, ओके, और या फिर बहुत सारे सेल्स के साथ एक साथ गुच्छे में भी, और यू कैन से कि इन ग्रुप्स ऑल्सो यू कैन दीज कैन अकर, जैसे बैक्टीरिया. ओके, now next is these microorganisms, they are very small in size. They are very small in size and they can't be seen with naked eyes. Okay, so they can be only seen through the microorganism. That's why they are known as microorganism. Now next let's talk about the next character. Okay, now these microorganisms, they are found everywhere. Okay, even in the water, air, soil, desert, forest, मतलब wherever you go you will find microorganism. That means they are cosmopolitan in distribution. इसको हम ये भी बोलते हैं because they are found everywhere, कोई भी place हो, even in the body of the living organism also these microorganism are found. Okay, in plants or animals or human beings. Okay, now these microorganisms, they are capable of existing in extreme conditions of temperature and dryness by forming a hard covering called cyst. Okay, in the beginning only we have talked about cyst. ये जो microorganism होते हैं, they have a very unique quality. Okay, जब कभी भी conditions जो हैं favorable नहीं होती हैं, okay, बहुत ज़्यादा temperature है या dryness है, whatever, if the condition is not suitable for the microorganism, तो वो अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, एंड दिस कवरिंग इज नोन एज सिस्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट. ओके, एंड इट प्रोटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जो है पड़े रहते हैं. ओके, एंड वेन एवर दे गेट फेवरेबल कंडीशन दे स्टार्ट रिप्रोडक्शन, दे स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन. Okay, so when the conditions become favorable, they come out of their shells, multiply and go through their life cycle. Okay, now some microorganisms are helpful to us, whereas many of them are harmful and they cause disease also. So microorganisms, they have exhibit both harmful characters also and useful characters also. Like अगर हम useful की बात करें तो like you all know curd, दही सबको पसंद है. नाउ दही में एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ अ लैक्टोबैसिलस.
ओके, जो कि मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, दही में. सो दिस बैक्टीरिया इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन द सेम वे अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट सब जानते हैं. ओके, सो ईस्ट जो है बेकरी प्रोडक्ट्स में एंड ऑल्सो इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन, वेनेगर, इसमें ईस्ट का बहुत यूज़ है. सो अगेन दिस ईस्ट इज़ अ फंजाई. फंजाई इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इट इज़ अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं हम लोगों में. कॉलेरा, डायसेंट्री, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होती हैं. ओके, देन स्किन डिजीज़ होती है फंगस की वजह से. सो वायरसेस, सॉरी, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर यूजफुल ऑल्सो एंड दे आर हार्मफुल ऑल्सो. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द types of microorganism. Okay, if you look, microorganism is broadly classified into 4 types. 4 तरह के microorganism होते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. हमने इनको 4 कैटेगरीज में रखा है. ओके, अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है इट एग्जिबिट इन मेनी फॉर्म. बहुत सारे फॉर्म्स में बैक्टीरिया आता है. ओके, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बेसिलाई भी बोलते हैं. ओके, एंड सिंगुलर, एंड दिस सिंगुलर इज बेसिलस. ओके, सो सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल इज बेसिलस एंड सिंगुलर इज बेसिलाई. सो अगर रॉड शेप बैक्टीरिया है तो उसको हम बेसिलस बोलते हैं. अगर आपका दिस ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है तो उसको हम स्पाइरेला बोलते हैं. स्पाइरेला, यू कैन सी थ्रेड लाइट्स बैक्टीरिया है. ओके, देन एक और टाइप का बैक्टीरिया होता है, दैट इज कोकाई. ये क्या है, राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, सर्कुलर शेप बैक्टीरिया होते हैं जिनको कोकाई बोलते हैं. एक और भी 4 टाइप का बैक्टीरिया होता है, इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक. ये जो है कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं. इन देयर शेप इज़ लाइक दिस, यू कैन सी. ओके, ये इस तरह के होते हैं और इनको हम बोलते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया. जो कॉमा का शेप होता है ये उसी शेप के होते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द बैक्टीरिया. नाउ फंजाई की बात करें तो फंजाई भी, इफ़ यू टॉक अबाउट राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं. ओके, देन पेनिसिलियम, इससे एंटीबायोटिक बनती है. पेनिसिलिन, इट इज़ अ टाइप ऑफ यूजफुल फंजाई. देन आपका एस्परजिलस. ओके, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एस्परजिलिन. Okay, so these are the few fungi which show both harmful also and useful properties also. Now alga की बात करें तो this is a unicellular alga. Okay, ये एक ही सेल का होता है, that is Chlamydomonas. Then nostoc. ओके, नॉस्टॉक ये कॉलोनी में रहता है, क्योंकि अभी हमने बात की थी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल्ड भी एग्जिबिट रह सकते हैं और ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं. देन ऑसिलेटोरिया, ये भी जो है फिलामेंटस शेप एल्गी है. देन स्पायरोगेरा ऑल्सो यू आर फेमिलियर, दैट इज़ ऑल्सो अ फिलामेंटस शेप्ड एल्गी. सो दीज आर द फ्यू नेम्स ऑफ algaes. Okay, another type of microorganism. Now lastly is your protozoa. ठीक है, प्रोटोजोआ में आपका द वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज एमीबा. ओके, एमीबा इज़ अ प्रोटोजोआ. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, कि इसमें सिंगल सेल ही, एक ही सेल होता है दैट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी. और ये एमीबा भी है जो है डिजीज़ कॉज करता है, एमीबियोसिस जिसको हम बोलते हैं. ओके, देन एंटमीबा है. एंटमीबा जिंजिवालिस डिजीज़ कॉज करता है टीथ में. ओके, सो दीज आर द फ्यू नेम्स ऑफ प्रोटोजोआ. देन पैरामीशियम है. ओके, सो यूग्लिना है. ओके, यूग्लिना को भी हम प्रोटोजोआ में ही हमने रखा है. ओके, सो दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, विच cause disease also and they are useful also. So this one more thing about the bacteria I would like to tell you. जो bacteria होते हैं they have a tremendous capacity of reproduction. ये बहुत जल्दी जल्दी reproduce करते हैं. ये जो bacteria होते हैं हर 9.5 मिनट में reproduce करते हैं. So you can yourself imagine कि वो एक दिन में बैक्टीरिया जो हैं वो अपना कितना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं. ओके, इन द सेम वे एक और बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, जो कि जो है रिप्रोड्यूस करता है हर 20 मिनट्स में. सो दे हैव अ वेरी फास्ट
रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, और इसीलिए जो है ये थोड़े ही समय में अपना नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, होप यू हैव understood the basic characteristic of microorganism and the 4 types of microorganism. Now in next lecture we will discuss about the viruses. What are the important characteristic of the viruses and why we have not kept virus under microorganism. Okay, so this is all for today. Thank you.